सुरेश यहाँ पर कहते हैं प्रकृति के ऊपर एक गाना हो जाए। बिल्कुल सुरेश जी सुनाएंगे। हम इंटरव्यू को पहले अपने जारी रखते हैं, इसके बाद हम जरूर आपको गाना सुनाएंगे। और तो शायना जी, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। जी जरूर पूछिए। जी हाँ, सवालों की छड़ी है आज मेरे पास। तो हमने जान लिया कि आप एक मीडिया शख्सियत हैं, मीडिया को बहुत नजदीक से आप समझती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, जानती हैं, नॉट ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। आप एक बहुत उम्दा राइटर हैं, बहुत ही उम्दा आप एक पोएटस हैं, वो भी हमने समझ लिया। So my question to you is, what would you prefer Shahina Khan to be better known as? A trainer, a broadcaster, or a writer, and why? Okay, the choice is narrow, but then hands down, I want to be known as a broadcaster. क्या बात? Absolutely, hands down. It gives me so much pleasure. It inspires me so much. And as I said, my father was a broadcaster, and you believe it or not, I always wanted to be a broadcaster right from my beginning. And the writing and of course training came, and I am a broadcast journalism trainer only. Right. So everything is engulfed in being a broadcaster. And to be a broadcaster, you need to write also. You need to know the language. But one thing that I'm in love with is a microphone. क्या बात है? Put a microphone in front of me, and then you know, you've given me everything in life. So definitely, I want to be known as a broadcaster. Yes, as a writer and a trainer. I take a lot of pleasure in training people, and I feel so elated and happy that, you know, I mean, at least 20% of my people who have been somehow trained by me in radio or in various media organizations that I go and train in, they always get back to me. They're always in touch with me, and that's what I've earned in life as a trainer. And as a writer, as a writer, yes, you know, things come to me. In fact, in my book, you said you have read my book, My Bouquet. I've written also in that I cannot write at will, you know, okay, I'll sit and write now. It isn't like that. Things just happen to me. Poetry especially just happens to me. Short stories, plots just come to me. Believe me, I have got up in the middle of the night at 2 o'clock and scribbled some poem. And most of the time, it happens to me. I've written there that poems just land on me. I don't make an effort to write, or I can't sit and say, okay, fine, today I'm going to compose. It's not like that. But then, hands down, a broadcaster is what I love. And I told you about the microphone, because to be on the microphone, you need language, diction, pronunciation, presentation, modulation of your voice. So everything comes in broadcasting. And आपने जहाँ माइक्रोफोन की बात की, तो इस बात से मैं भी आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ कि माइक्रोफोन से प्यार तो मुझे भी है। जी जरूर। और आपने फिर ट्रेनिंग की बात की, तो जहाँ पर मैं शाइना जी ने ट्रेनिंग की बात की, तो आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड एंड आई वुड लाइक टू मेंशन इट it was my honor कि मेरी जो आकाशवाणी की जर्नी या ब्रॉडकास्टर की जर्नी शुरू हुई, वो शाहिना जी के साथ शुरू हुई। तकरीबन 25 साल 25 साल पहले, और यंग कॉलेज, और मैंने आकाशवाणी में जाना शुरू किया। और शाहिना जी तो आपके श्रोता मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिनको मैंने ट्रेन किया। और अब यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि जो चेला है वो गुरु से आगे निकल गया है, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जब मैं आप सभी को अपना बच्चा कहती हूँ, तो जब मेरे हाथ से ट्रेन हुए बच्चे क्या आपके अंदर वो टैलेंट है। और आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने ये बात कही थी आपसे, हरीश, आपको याद होगा कि वो टैलेंट को मैं सिर्फ निकालती हूँ, उसको उभारती हूँ। जैसे मैंने अपने वालिद साहब की बात की कि उन्होंने वो टैलेंट देखा और उभारा, और हमसे कहा कि जबान और वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं है। आपने वो टैलेंट निकाला। ये तो आपकी जरा नवाजी है जो आप कह रही हैं कि चेला गुरु से आ गया। ऐसा कभी हो नहीं सकता। चेला हमेशा चेला ही रहता है। मैंने आप ही से बहुत कुछ सीखा, और जो हमारी ट्रेनिंग रही, काफी हमारी बड़ी मेथोडिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी बैक इन द डे, और बहुत ही उसमें तहजीब से हमें काम सिखाया जाता था, और वो तहजीब आज भी मेरी कायम है।
मैं थैंक यू वेरी बहुत मच फॉर खुश दैट। हूँ देख के, बहुत खुश हूँ, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ सारा हमेशा है। क्रेडिट मैं हमेशा ही आपको दूंगा और हमेशा ही आपको ही देता रहूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको शहनाज बता दूं कि संजीव भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी हमें देख रहे हैं। निहारिका शर्मा हमें दिल्ली से देख रही हैं, और अनुपा कहती हैं कि मैडम यू आर सो क्रिएटिव। तो सिर्फ क्रिएटिव ना कहें, क्रिएटिव से भी बहुत सुपर क्रिएटिव है, बट यस यू आर सो क्रिएटिव। तो ये कुछ लोगों बेहद के शुक्रिया। मैं कमेंट। इतनी हम्बल, मतलब ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की जर्रा नवाजी है। जी, बंदा परवर मैं कहाँ, ये मेरी शायरी कहाँ, आपकी जर्रा नवाजी है, मैं इस काबिल कहाँ। क्या बात है, तो क्या बात है, आपके सो आपके नाइस। सुनने वाले मेरी जर्रा नवाजी आप कर रहे हैं आप लोग, तो बेहद शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और That's so nice. That's आई so फील सो beautifully said। और हम्बल्ड। ये या नहीं, आप हम्बल हैं, दैट्स वन थिंग। तो अपनी बातचीत हम और जारी रखते हैं शाइना जी। मैं यहाँ से आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, लेकिन सवाल से पहले क्यों ना हम कुछ सुन लें आपसे। जी जरूर, जरूर सुनिए। जी मैं तैयार प्लीज हूँ, सुनाइए। सुनाने के एक लिए बार तैयार दोस्तों हूँ। मैं फिर से बता दूं, माफी चाहूंगा शाइना जी, मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज हम रूबरू हैं शाइना खान जी के साथ, जो कि टोरंटो में इस समय मौजूद हैं। भारतवर्ष से आई हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए और अपने परिवार से मिलने के लिए। और शी इज अ प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि सिर्फ एक छोटा सा उनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अदरवाइज 40 साल का उनका तजुर्बा है आकाशवाणी के साथ, और विज्ञान भवन में, राजपथ में, और कहाँ कहाँ, हर जगह, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, सभी जगह पे। संजीव भारद्वाज कहते हैं कि ऑसम, दैट्स ऑसम प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच संजीव भारद्वाज, एंड थैंक यू। आपने बात टोरंटो की है, तो मैं जी आपसे और आपके सभी श्रोताओं और सब लोग जो आपसे जुड़े हैं उनके साथ ये साझा कर लूं कि मैं बहुत जी, ऐश में हूँ यहाँ टोरंटो में पिछले 1 महीने से। क्या बात, मेरे क्या बात। बेटे अहमर खान और मेरी बहू शिनाज गफ्फार खान ये यहाँ जी रहते हैं, और इन्होंने जी, मुझे वाकई एक महारानी की तरह रखा हुआ है पिछले 1 महीने से, और मैं नजर बहुत, जी हाँ खुदा, नजर आ रहा जी हाँ, और वाकई, और है। जी खुदा इनको खुशियां बख्शे। और वो बात जी इसकी जो आप कविता की कह रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं और शिनाज हम लोग टहलने गए थे, और हम जी, खूब बारिश में भी दोनों सास भीगे। बहू हुए। हाँ भीगे, टहले, खूब जी, मजा आया, यहाँ भी मौसम बढ़िया है। तो आपको एक बारिश की कविता मैं सुनाती हूँ, उसका शीर्षक है बूंद। तो अभी कुछ यानी कि आप ये आपने हाल ही में लिखी है, आप यही कहना चाह रहे हैं हाल शायद। ही में लिखी है, जी हाँ, ये कविता मैंने हाल ही में लिखी है, और प्लीज सुन। साझा करना चाहूंगी आपके श्रोताओं जी, के साथ। ये कागज जरूर मेरे हाथ जरूर। में है, क्योंकि बूंद, नई कविता उतनी याद नहीं रहती है। तो तो ये सिर्फ बूंद है या टोरंटो की बूंद है? अब इस बूंद को सुन लीजिए, एक ही बूंद है, मैं वो बूंद हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये है ठीक। बूंद। इसका शीर्षक है बूंद। जी, बारिश की मैं पहली बूंद, बारिश की मैं पहली बूंद, छम से पड़ी तपती धरती पर, सौंधी सौंधी खुशबू उठी है मुझसे मिलकर। क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात। बारिश की मैं पहली बूंद, छम से पड़ी तपती धरती पर, सौंधी सौंधी खुशबू उठी है मुझसे मिलकर। प्यासा पौधा झूम रहा है, मधुर ऋतु आई, गौरी के भी अरमानों ने ली अंगड़ाई। हम्म, प्यासा पौधा हम्म, झूम रहा है, मधुर ऋतु आई, गौरी के भी अरमानों ने ली अंगड़ाई। सावन बरसा मन है तरसा, साजन की प्यार भरी बातों में डूबी सजनी, तन मन भूली, देखो तो झूले पे कैसी है झूली। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया, शुक्रिया। सावन बरसा मन है तरसा, साजन की प्यार भरी बातों में डूबी सजनी, तन मन भूली, देखो तो झूले पे कैसी है झूली। और बारिश की मैं वो हूं बूंद, सजनी के जी गालों को छू कर, मन उपवन में फूल खिलाकर धरती को यूं सींच रही हूं, मानो आलिंगन धर्म हो मेरा। क्या बात, शुक्रिया। क्या बात है, बे आलिंगन धर्म हो मेरा। जी अमेजिंग, जी शुक्रिया। व्हाट अ इमेजिनेशन। हाँ, बेहद शुक्रिया। बारिश की मैं वो हूँ बूंद, सजनी के गालों को छू कर, मन उपवन में फूल खिलाकर धरती को यूं सींच रही हूँ, मानो
आलिंगन धर्म हो मेरा। और अगला है कि बारिश की मैं वो हूं बूंद जिसको देख शिशु मुस्काता, स्नेह मुझी पर ही है उमड़ाता। क्या बात है, शिशु मुस्काता स्नेह मुझी मुझी पर है पर मोड़ा। उमड़ाता, बारिश की मैं उमड़ा। वो हूं बूंद जिसको देख शिशु मुस्काता, स्नेह मुझी पर है उमड़ाता। छोटी चिड़िया चोंच में भरकर बच्चे को यूं तर करती है, मानो इस बूंद ने जैसे पंछी को जीवन दान दिया है। क्या बात है, क्या बात है, छोटी बहुत सुंदर। शुक्रिया। छोटी चिड़िया चोंच में भरकर बच्चे को यूं तर करती है, मानो इस बूंद ने जैसे पंछी को जीवन दान दिया है। और बारिश की मैं वो हूं बूंद के जिसने बूढ़े बरगद को थाम लिया है, थोड़ा सा आराम दिया है, थोड़ा जीवन दान दिया है। क्या बात है, क्या बारिश बात है। की शुक्रिया। बारिश की मैं वो हूं बूंद जिसने बूढ़े बरगद को थाम लिया है, थोड़ा जीवन दान दिया है, थोड़ा सा आराम दिया है। और अंतिम है कि बारिश की मैं वो हूं बूंद कि जो अपने साजन से मिलने को आकाश से धरती तक आ पहुंची। बारिश की मैं वो हूं बूंद कि जो अपने साजन से मिलने को आकाश से धरती तक आ पहुंची। सुध बुध भूले सारी सृष्टि झूम के डोले, बारिश की मैं एक बूंद, एक बूंद, बूंद, बूंद। क्या बात है, वेरी नाइस। तालियां बजाने का मन कर रहा है मेरा। बहुत खूब, बहुत बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बेहद खूबसूरत। और अनुपा फिर से कहती हैं अति सुंदर। और संजीव भारद्वाज जो है वो कहते हैं, भिलाई से है संजीव भारद्वाज, कहते हैं वंडरफुल पोएम। और आलिंगन धर्म है मेरा, वाह वाह। तो वही बात देखिए, वाह वाह कहाँ कहाँ से निकल रही है बहुत कि बहुत आलिंगन। शुक्रिया संजय जी और बहुत खूब। अनुपा जी और शायला जी, एक बात की यहाँ पर मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जब आपने उर्दू में जो गजल पढ़ी, जी जो पहले जो भी आपने शेर पढ़े उर्दू में, मतलब वो खालिस उर्दू में थी जबान जी। जो उर्दू में थी, और ये जो हिंदी थी जी बहुत प्योर हिंदी थी आपकी। जी। मतलब दिस इज कमेंडेबल। तो आपने सही ये किया श्रेय कि मेरे पिताजी को जाता है, जी, आपने क्योंकि शुरू में कही है। मैंने शुरू में बताया, क्योंकि वो ये हमें जिसे एक लफ्ज है कि बिल्कुल ये बात गवारा नहीं करते थे कि हम एक जबान में दूसरी जबान मिलाएं, और जरा सा उनके पास एक लफ्ज पूछने को चले जाइए तो 10 मिनट जी, गए आपके। वो उस ठीक है। लफ्ज की जड़ में आपको पहुंचाते थे। कभी कभी कहते थे जाइए डिक्शनरी उठा के लाइए। और हमारे घर में उनकी किताबें बहुत सी मेरे पास हैं, तो वो हैं कि उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू। हिंदी टू, मतलब ये तीनों जबानें उन्होंने ऐसी घोट दी कि मिलाना हमारे लिए एक जुर्म था। जबान को मिला नहीं सकते थे, कि खालिस जबान में बोलिए। और तलफ़ुज़ उन्होंने सही करवाया। और बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। तो मैं कुछ कमेंट्स जल्दी से पढ़ देता जी, हूँ। और आरती कैम दिल्ली से देख रही हैं, कह रही हैं वेरी नाइस ब्यूटीफुल कविता। अनुपा कहती हैं रियली हैप्पी टू हियर यू मैम। संजीव भारद्वाज कहते हैं लवली गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया भिलाई, मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल बाय सच अ सोलफुल पोएम शाहिना जी। थैंक यू तो सो ये मच, सभी बेहद शुक्रिया। विदेश से आपको लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी कि मेरी जो कुछ थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ लोग सुन के उसको पसंद कर रहे हैं।